डिफरेंट कंपेयर टू व्हाट सीटी सीरीज इज. काफ़ी चेंजेस है एग्जाम के अंदर. अगर मैं सीटी सीरीज और सीटी का कंपैरिजन करूँ तो सीटी 1 is one of the most lengthiest and I can say one of the difficult exam in terms of understanding the pattern of these theory exams. But once you get a hold over the theory, it becomes easy to clear these type of exams. तो मेरी हमेशा ये रिकमेंडेशन रहती है कि पहले आपको सीटी 1 देना चाहिए. उसके बाद you should plan out your SPs depending on the domain or the knowledge you have. But if you are done with the CT series, the next exam that you should pick is definitely CT1 because CT1 के अंदर आपको लाइफ की नॉलेज भी मिलती है, आपको जर्नल की नॉलेज भी मिलती है, आपको हेल्थ की नॉलेज भी मिलती है, आपको पेंशन्स की नॉलेज भी मिलती है. एंड देन आफ्टर क्लियरिंग CT1 you can plan your further exams. So मेरी रिकमेंडेशन ये रहती है to all the students that first clear your CT series. After clearing your CT series, then pick up CT1, and after clearing CT1, it's up to you whether you want to go ahead with CT2 or 3, or you want to go ahead with SPs depending on the time that you have. Now CT1, why CT1 is completely different from your CT series. पहली चीज़ सीरीज में हम लोग या चाहे मैं CM1 की बात करूँ, चाहे CS1 की बात करूँ, चाहे CM2 या CS2, apart from CD1 and CD2 is basically they are focusing more on numericals. Less of application is there, but जब से R programming introduce हुई है या Excel introduce हुआ है, although they have started testing on application skills as well, but the pattern of testing is very different. In CM and CS series were basically tested on the practical implementation of what you are learning. CT में क्या है? As such, अगर कोई आपको ये कहता है कि भैया कोर्स के अंदर 38 चैप्टर्स हैं, आप 38 चैप्टर्स अच्छे से पढ़ के जाओ और आप पास पेपर्स पढ़ के जाओ तो आपका पेपर निकल जाएगा. It's not that easy. It used to be still somewhat easy for those students जिनको बुक से मतलब those who can mug up easily from the book. Before the exams were online, at least हमें ये होता था कि हाँ कुछ portion हमारा book work आ गया, and those who are comfortable with book work or those who feel that they can learn the book work, it used to be at least one of the paper used to be easy. But since the exams have become online, whether I talk about II or IFO, the pattern of testing of this exam has become very difficult, and the questions that they have targeting is completely application based, no book work. So let me first discuss what exactly the exam is, how many papers do we have in this exam. So CP1 में we have 2 papers, paper 1, paper 2. Paper 1 is of 100 marks, paper 2 again is of 100 marks. Same timings, you have 3 hours 30 minutes for both the exams, and these are tested on consecutive days. So both paper 1 and paper 2 will be tested on consecutive days. तो जैसे CSCM में क्या होता है कि CS1 आ जाए तो मे बी CS2 they give a gap of 2-3 days, but for CPs the papers are tested on consecutive days first day. अब आप ये मान के चलो, अब बहुत स्टूडेंट्स का ये डाउट होता है कि क्या हमें इंडिविजुअल पेपर में पास होना है, या फिर ऐसा होता है कि अगर हमारा पेपर 1 अच्छा नहीं गया तो हमारा पेपर 2 चेक नहीं होगा. सो इट्स नथिंग लाइक दैट. दे बेसिकली एक्सपेक्ट कि आपका टोटल स्कोर कितना है 200. अब 200 में से जो आपके मार्क्स आने चाहिए, यू शुड गेट मार्क्स अकॉर्डिंगली, मतलब आपकी परसेंटेज 60% के अराउंड बननी चाहिए. then you can think that you would be able to clear this exam. So अगर पेपर 1 में कुछ ऐसा है कि हाँ बहुत अच्छा जाता है और पेपर 2 उतना अच्छा नहीं जाता, बट हो सकता है आपके पेपर 1 में क्योंकि अच्छा गया तो आपको उसमें ज़्यादा मार्क्स आ जाए, मे बी यू आर एबल टू स्कोर 70-75 मार्क्स इन पेपर 1, तो इवन इफ यू हैव अराउंड 55 मार्क्स इन पेपर 2, तो you would be able to crack this exam. Now both the papers are completely theory based. जब 2019 में पैटर्न चेंज हुआ तो जो 1-2 चैप्टर्स थे न्यूमेरिकल थे, एटलीस्ट इवन दैट थ्योरी हैज आल्सो बीन एलिमिनेटेड. सो नो चांसेस ऑफ गेटिंग न्यूमेरिकल इन योर एग्जाम. द एग्जाम्स, बोथ द एग्जाम्स आर गोइंग टू बी कंप्लीटली थ्योरी बेस्ड. पहली चीज, आप दोनों एग्जाम्स थ्योरी बेस्ड हैं तो वो 2 एग्जाम्स क्यों कंडक्ट कर रहे हैं? व्हाई आर दे बेसिकली
given your account login ID and password, you already have your account login ID password, उसके अंदर एग्जाम अपलोड होगा and then you have to type the exam on MS Word and accordingly submit your exam. अब II के अंदर आप एग्जाम दे रहे हो, अगर दिस इज रिटन एग्जाम, तो वो कैसा पैटर्न है, you need to have your web camera installed, you need to have mic, then there is metal browser जो automatically आपकी सारी applications बंद कर देता है, and you are supposed to type on the text editor which they will provide you. ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है IFOI के अंदर, no web camera till date, no mic, no safe browser. So IFOI is clearly saying you that my exams are open book. II is saying you that my exams are online, but they are not open book. So let's first study the difference in the pattern testing of both the exams of both the societies. So when I say IFOI exams are open book, that means you can open any book, you can open any notes in front of you. If you want to refer those notes or that particular book in exam, you are allowed to do that. But II में क्या है, आपके पास कैमरा इंस्टॉल्ड होना चाहिए, आपका वेब कैमरा कंटिन्यूसली ओपन रहेगा, आप ब्राउजर में सिर्फ और सिर्फ पेपर ओपन कर सकते हो, you will automatically, all other things will automatically be closed, and there is mic as well, so आप कुछ भी, there is no scope for opening any book in II. So that means पेपर 1 and पेपर 2 के टेस्टिंग में चेंज आया है आफ्टर द एग्जाम्स हैव बिकम ऑनलाइन. पहले पेपर 1 में बहुत ज़्यादा बुक वर्क आता था, आप ये मान के चलो 50% यूज्ड टू बी बुक वर्क इन पेपर 1 and at least 10 to 20% content of paper 2 also used to be book work before this COVID changes. But now if I talk about II, अब दोनों सोसाइटीज़ के एग्जाम का पैटर्न डिफरेंट हो गया, तो आपको पहले दोनों सोसाइटीज़ के एग्जाम का पैटर्न अंडरस्टैंड करना है. इफ़ आई टॉक अबाउट II कह रहे हैं मैं तो बुक वर्क दूंगा. क्यों मैं बुक वर्क दूंगा? क्योंकि मैं आपको कुछ भी अलाउ नहीं कर रहा ओपन बुक करने के लिए. तो यू कैन स्टिल एक्सपेक्ट सम बुक वर्क इन II, बट नो बुक वर्क इन IFOI. So IFOI beat paper 1 or paper 2. IFOI has completely eliminated book work from its papers. Paper 1 II का कैसे रहेगा? You can expect 9 to 10 questions, maybe some of 5 marks, some of 10, some of 15, some of 20, some of 25, some of 30. So ये हमारी जनरल रेंज रहेगी II के पेपर 1 के क्वेश्चंस की, जिसमें से you can expect 2 to 3 questions may be targeting book work. रेस्ट जो आपके 5 to 7 जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें से जो 5 to 7 रिमेनिंग क्वेश्चंस बच जाएंगे, they more will be targeting on application skills. बट जो application skills वो target करेंगे that will be somehow related to book work, but definitely you will have to extend in terms of your language and apply the knowledge that you have learned so far. High order skills paper 1 में 15% आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. रेस्ट मेजॉरिटी फोकस हमारा एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस पे रहेगा. इफ आई टॉक अबाउट II पेपर 1, नाउ कम टू II पेपर 2. 2 questions, 50 marks each, targeting only one thing.
IFOA के पैटर्न पे। पेपर 1 नो बुकवर्क एट ऑल, कुछ भी बुकवर्क नहीं आने वाला IFOA पे। दे आर सेइंग जो मर्जी बुक ओपन करो, जो मर्जी नोट्स रेफर करो, मुझे कोई मतलब नहीं। दैट मीन्स एग्जाम इज बिट डिफिकल्ट nowadays from IFOA because theory exam है, आप कुछ रेफर सब कुछ रेफर कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, you are allowed to use any notes, any material that you want to, तो आप कुछ भी बुक से कोट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप बुक से कोट करोगे तो प्लेगरिज्म का इशू आएगा which definitely has to be avoided। so IFOA के एग्जाम्स आप इसलिए डिफिकल्ट हो गए हैं बिकॉज दे आर नॉट टारगेटिंग बुक वर्क एट ऑल। पेपर 1 भी completely application based questions, higher order plus application। पेपर 2 IFOA का same 2 questions, 50 marks each, again testing same thing, case study, and that too combination of higher order and application skills questions। अब पेपर पैटर्न आपके सामने, पेपर पैटर्न you would have to really realize the difference that there is a way of testing a question in II and IFOA। II के अंदर क्या है, you can use your own language as well, but IFOA के अंदर you are supposed to be completely technical, completely specific while answering the question। You have to first read the question, you have to understand what exactly they want to convey us, and you have to be very crisp कि मुझे किस तरीके से लिखना। आप IFOA में layman terms में लिखना नहीं expect कर सकते because obviously the English differs, so because of that we can expect that IFOA has completely technical, but somehow you have this relaxation in IR। so if case you are planning this exam for April 2022, then I would advise you, if you have membership of both the societies, you should give exam from both the society because you never know किसकी society से आपका clear हो सकता है। अब हम आते हैं that हमें पेपर पैटर्न पता चल गया, ठीक है। अब ये जो एप्लीकेशन स्किल्स क्वेश्चंस हैं या नॉलेज ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं या हायर ऑर्डर स्किल्स हैं, ये किस पे बेस्ड हो। सो लेट्स जस्ट क्विकली गो थ्रू द सिलेबस। सो वी हैव 38 चैप्टर्स इन CE1। एक ग्लॉसरी है, मैं उसको 39 आप मान लो, तो यू कैन स्किप द ग्लॉसरी बिकॉज once you are going through all the chapters that means you are going through glossary as well, so chapters आप skip कर सकते हो वाले। So we have 38 chapters overall in CP1। Now these 38 chapters will be testing your knowledge of different topics, like we have assets market, basically chapter 8 to 10 revolves around asset market। Then we have chapter 11 to 14 basically testing investment strategy। 15-16 is also on the investment ways। Chapter 17 is basically modeling। 18 to 23 section data assumptions, financing। Then chapter 24 to 30 covers different type of risk। उसके बाद 31 से 38 में we have reinsurance, capital requirements, we have monitoring, surplus, deficit। Initial chapter 0 talks about actuarial control cycle, more relevant from IFOA point of view। Chapter 1 से 4 basically cover regulation, stakeholders।
ठीक है. Then chapter 5 covers your pension, 6 covers your life products, 7 cover your general insurance products. ठीक है. अब आप चाहे मैं आई की बात करूँ चाहे मैं IFOA की बात करूँ, एटलीस्ट द चैप्टर्स विच आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम बोथ द सोसाइटीज परस्पेक्टिव एंड द चैप्टर्स विच आर लेस टेस्टेड इन बोथ द सोसाइटीज. तो चैप्टर 5, 6, 7 जो हैं ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए चाहिए हमें. मतलब ऑल दोज हु आर वर्किंग इन पेंशन दे मस्ट बी हैविंग वेरी गुड नॉलेज ऑफ चैप्टर 5. सो आपको सिर्फ चैप्टर 6 और 7 को रीड करना है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ एंड जर्नल प्रोडक्ट्स. ऑल दोज हु आर वर्किंग इन लाइफ इंश्योरेंस यू मस्ट बी वेल वर्स्ड विद चैप्टर 6, बट यू हैव टू गो थ्रू चैप्टर 5 and 7 in detail to understand the working of pension and journal products, and same thing holds for journal insurance product. चैप्टर 1 से 4 इज बेसिकली बुक वर्क. ठीक है. तो इसीलिए या फिर आप स्टेक होल्डर्स वाले चैप्टर में कुछ हद तक एक एप्लीकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो. सो दैट्स व्हाई मोर रेलिवेंट फ्रॉम आई perspective now. Actuarial control cycle is basically your entire course of CP1 revolves around this actuarial control cycle. So once we are done with the entire course, I will be discussing this cycle in detail, because you will be getting an idea of this only once we are going through it, once we have gone through all the contents of CP1. अब बेसिकली आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये जो इनिशियल के चैप्टर्स हैं 8 to 16, पहले क्या होता था, बहुत ज़्यादा टेस्ट होते थे 8 to 16, बट अब टेस्टिंग कम हो चुकी है इन चैप्टर्स की. वेदर इट कम्स टू आई और IFOA, दे हैव स्टार्टेड टेस्टिंग लेस ऑन दीज चैप्टर्स. सो मुश्किल से 5 या 10 नंबर का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन चैप्टर से. बेसिकली जो मेन चैप्टर्स हैं जिसपे वो उनका काफ़ी आजकल टेस्टिंग उन्होंने अपनी स्टार्ट कर दी है, फ्रॉम चैप्टर 17 to chapter 38. They will not come directly, but they will come in the form of application. अब पेपर 1 पे पहले हम लोग आते हैं, उसके बाद हम लोग पेपर 2 का डिस्कस करेंगे. तो पेपर 1 में मैंने क्या बोला कि आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यू विल बी हैविंग 9 to 10 क्वेश्चंस फ्रॉम 5 to 25-30 मार्क्स, एंड यू विल बी टारगेटेड बेसिकली ऑन द मेन क्वेश्चंस दैट वी हैव डिस्कस्ड. अब जो क्योंकि आई के अंदर स्टिल आप बुक वर्क एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट IFOA के अंदर बिल्कुल भी बुक वर्क नहीं होगा. तो आपको कैसे समझना है या कैसे इस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, सबसे पहले यू हैव योर वीडियोस विद यू, full course videos. Now in these videos I have covered almost everything which is there in the co-reading. So even if you want to skip the co-reading, you can do that if you have gone well through the videos. Second thing is, apart from the videos, you know that we have a live discussion sessions every weekend. अब इस लाइव डिस्कशन में व्हाट आई विल बी डूइंग इज कंसेप्चुअल गो थ्रू ऑफ द एंटायर चैप्टर अगेन, सो दैट जब आपने वीडियो देख ली और आपने उसकी एक कंसेप्चुअल वाली क्लास अटेंड कर ली, एटलीस्ट दैट चैप्टर इज फिट इन योर माइंड एंड यू डोंट हैव टू गो थ्रू द को रीडिंग. After videos and attending the live class, I think the chapter is almost done with every respect. Now, apart from the conceptual discussion of the chapter, I will be focusing on past paper questions related to that chapter. यहाँ ये एक ऐसा एरिया है, मतलब although I have tried to cover different past papers in videos itself, so you will be finding lot of questions being discussed in videos, but same time we will be discussing different questions in the class itself. So that is why we are keeping live classes, because ये subject आपसे सिर्फ एक ही चीज मांगता है, वो है प्रैक्टिस. अब प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है कि आप ठीक है आपने वीडियो से गो थ्रू कर लिया या आप सेम टाइम पर को रीडिंग गो थ्रू कर रहे हो और आपको लग रहा है कि यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर द सब्जेक्ट, ये पेपर ऐसे नहीं निकलने वाला. इस पेपर के लिए यू डेफिनेटली हैव टू रीच टू द स्टैंडर्ड विच इज रिक्वायर्ड फॉर एग्जाम. यू हैव टू रीच टू दैट लेवल ऑफ नॉलेज, यू हैव टू बेसिकली रीच टू द पॉइंट्स. मैं अभी लेट सपोज मैं अभी आपको बोलूंगी कि हाँ गिव मी 5 points फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, या फॉर द 10 marks क्वेश्चन इफ आई आस्क यू टू मेक 20 points, you won't be able to do so because you have not understood the pattern which is required for these type of exam. तो हम लोग इनिशियल के मंथ्स में सिर्फ फोकस करेंगे कि अच्छा ये एग्जाम हमसे, इस एग्जाम की एक्सपेक्टेशन क्या है, बेसिकली एग्जाम क्या मांगता है.
And then in the later months, when we are near to exam, we will be focusing lots on questions discussion. तो मेरी क्वेश्चन डिस्कशन क्लास माइट बी द सेकेंड और द थर्ड क्लास वंस आई हैव स्टार्टेड द चैप्टर, मे बी द सेकेंड क्लास ऑफ क्वेश्चन डिस्कशन. लेकिन उस क्वेश्चन डिस्कशन और जो मैं क्लास, लेट्स सपोज मैं कोर्स की एंड में जो क्वेश्चन डिस्कशन की क्लास लूंगी, उसमें यू विल फील द डिफरेंस इन योर वे ऑफ अटेम्प्टिंग, बिकॉज बाय दिस टाइम यू वुड हैव लर्नड हाउ टू आंसर डिफरेंट स्टाइल ऑफ क्वेश्चंस. So we will be spending considerable time in basically questions discussion, so that we can understand that where you guys are lacking in, what exactly do you guys require in terms of practice, and आपकी क्या सोच जा रही है, मेरी क्या सोच जा रही है, and what exactly is the standard solution and how to reach to that level which is required for exam. तो उसके लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर पार्टिसिपेटिंग इन द लाइव क्लासेस. सो जस्ट डोंट कीप योर सेल्फ रिस्ट्रिक्टेड टू वीडियोज. इन केस यू हैव ऑप्टेड ओनली फॉर वीडियोज एज वेल, तो भी यू कैन आस्क फॉर दी की लाइव क्लासेस की जो भी डिस्कशन है, एटलीस्ट यू हैव द वीडियोज रिलेटेड टू दैट. इन केस यू समहाउ मिस अ पर्टिकुलर लाइव क्लास, मेक श्योर बिफोर अटेंडिंग द नेक्स्ट क्लास यू आर वॉचिंग द वीडियो ऑफ दैट क्लास. मेरी हमेशा आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी दैट डोंट मिस एनी ऑफ द लाइव क्लास, क्योंकि जो लाइव क्लास का आप एक्सपोजर लोगे, वो आप जो लाइव पार्टिसिपेट करोगे, ऑब्वियसली वो आप वीडियो में नहीं कर सकते, बट स्टिल in case you cannot participate or you are not available at that particular time, you can go through the video is exactly the same जो हमारा लाइव क्लास में होगा. अब आपके पास ऑप्शन क्या है, वीडियोस विल रिमेन विद यू, एंड क्लास आप चाहे ऑनलाइन मोड से ले सकते हो, चाहे आप ऑफलाइन मोड से ले सकते हो. इट्स अप टू यू हाउ यू वांट टू टेक द क्लास. ऑफलाइन मोड मीन्स यू वांट टू कम टू द सेंटर एंड इंटरेक्ट इन अ ग्रुप, और ऑनलाइन मीन्स यू आर ओके विद योर होम और ऑफिस एंड यू आर जस्ट ऑनलाइन लाइव पार्टिसिपेटिंग. So दोनों modes में live participation is there. It's up to you how you want to participate. If in case you are staying in Delhi, you can come to the center as well. In case you are staying outside Delhi or outside India, you have access to our online platform as well. So how will the classes be provided is, you will be provided with the classes via a particular software that you are supposed to download either on the Windows or on your Android phone or Android tab. It works in all the 3 applications. So videos will be uploaded, or videos are already uploaded there. You have the access to download the videos as well, so you can download the videos as well. Live classes will also be through the same platform only. There is just one particular button which you have to press for taking the live class. So the same platform is used for video, same platform is there for the live class. So this is about the technicalities which are involved in taking the class. So just make sure that you have done all these things in case you are planning to go for videos or live classes. अगर आप ऑफलाइन आ रहे हो तो भी आपके पास वीडियो सॉफ्टवेयर के अंदर है एंड क्लासेस का एक्सेस आप ऑफलाइन ले रहे हो, और यू कैन वी कैन बी मोर फ्लेक्सिबल इनफ एज वेल दैट ईदर यू कैन टेक समटाइम्स यू कैन कम टू द सेंटर, समटाइम्स यू कैन गो फॉर ऑनलाइन, एंड समटाइम्स व्हेन यू आर कंप्लीटली नॉट अवेलेबल यू कैन जस्ट रेफर टू द वीडियोज. तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में आप फ्लेक्सिबल भी रह सकते हो, दैट समटाइम्स यू वांट टू कम टू द सेंटर. लेट्स सपोज वी आर डूइंग सम डिफिकल्ट चैप्टर, यू फील दैट इट्स बेटर टू गो टू द सेंटर, यू कैन डू दैट. अदरवाइज आप ऑनलाइन ले सकते हो. मेरी साइड से तीनों मोड सेम है, ठीक है. सो हमने अभी पहला स्टेप क्या किया कि आप लोगों ने वीडियोस देखी प्लस आपने लाइव क्लास अटेंड करी इन वॉट एवर मोड यू वांट टू. थर्ड स्टेप इज आफ्टर वीडियोस एंड लाइव क्लास, अगर टाइम है तो गो थ्रू द को रीडिंग, बट दिस इज समथिंग optional, or I won't say optional, this is something based on the chapter that we are discussing. कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जिसमें मैं आपको क्लास में या वीडियो में मैंने बोला होगा कि यू कैन स्किप द को रीडिंग फॉर दीज चैप्टर्स, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जिसमें मैंने कुछ सेक्शंस आपको बताए होंगे कि एटलीस्ट इफ यू डोंट वांट टू गो थ्रू पर्टिकुलर चैप्टर यू कैन रीड द पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर. सो जस्ट मेक श्योर दैट यू आर ओबेइंग ऑल द इंस्ट्रक्शंस विच आई एम स्टेटिंग इन टर्म्स ऑफ द रीडिंग ऑफ को रीडिंग, ठीक है. अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये तीनों चीज़ें जब हमारी कंप्लीट हो जाएंगी हम मूव करेंगे चैप्टर वाइज समरी लिस्ट. अब योर सॉफ्टवेयर इज ऑलरेडी अपडेटेड विद द वीडियोस, लाइव क्लासेस सिस्टम एंड समरी लिस्ट. अब समरी लिस्ट क्या होती है, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस दैट यू हैव टू डू चैप्टर वाइज
फ्रॉम बोथ द सोसाइटीज II एज वेल एज IFOA। सो मेरे को आपको इस चीज़ से मतलब नहीं होना चाहिए कि मैं IFOA का एग्जाम प्लान कर रही हूँ या II का एग्जाम प्लान कर रही हूँ। अगर आप प्लान कर रहे हो एग्जाम तो इस पर्टिकुलर CP1 के लिए आपको ऐसा नहीं है कि अगर आप II से प्लान कर रहे हो तो आपको सिर्फ II के क्वेश्चंस करने हैं और अगर आप IFOA से प्लान कर रहे हो तो आपको IFA के क्वेश्चंस करने हैं, बिकॉज डेफिनेटली वो लेवल नहीं आएगा। वो लेवल अचीव करने के लिए वी हैव टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम both the societies. You don't have to search for the questions. Everything is updated chapter wise. You have access to chapter wise summary list. Chapter wise summary list का मतलब है all the questions till date that has been asked in different different time of exam, all the questions have been updated in summary list. Once you complete a particular chapter or a particular set of chapters, the way in which the questions are asked, you can simply refer to that particular chapter summary list and complete all the questions that are mentioned there. So this will take definitely time, and इसी list में से some of the questions we will be discussing in class, some will be discussed in the videos and some will be for your self study. ठीक है, after this you have to attempt chapter wise assignments. Now when I say chapter wise assignments, what we have done is that you will be provided with a complete schedule at the time of your enrollment till the time of your exam. तो आपकी एनरोलमेंट डेट पर आपको एक स्केड्यूल दिया जाएगा, जिस स्केड्यूल में इट हैज डिटेल्स रिलेटेड टू आपकी असाइनमेंट डेडलाइंस, आपके यूटीज की डेट्स एंड आपके मॉक्स की डेट्स. दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल if you have enrolled let's say on 15th September 2021 for April 2022, तो आपको उस दिन स्केड्यूल मिलेगा जिसमें लेट्स से स्केड्यूल में क्या होगा दैट फर्स्ट यूटी इज ऑन 15th October for example, next UT is on 30th November. So you have all the dates of different UTs, so the chapters corresponding to these UTs, so that you can plan your studies in advance. And my course will also be proceeding as per the schedule only. लेट्स से अगर आप II प्लान कर रहे होगे तो आपके स्केड्यूल में II की हम लोगों ने मॉक की डेट मेंशन करी होगी. सपोजिंगली मैंने II की मॉक की डेट मेंशन करी है मार्च 15th मार्च. IFOA की मैंने मॉक की डेट मेंशन करी है 30th मार्च. दैट मीन्स by 15th March my syllabus would automatically be completed. अगर मॉक की डेट्स आपको मिल चुकी हैं दैट मीन्स हमारा जो कोर्स है सिलेबस है वो उसी के हिसाब से प्रोसीड होगा. तो यू डोंट हैव टू बी कंसर्न्ड अबाउट सिलेबस और एनीथिंग. यू हैव द कंप्लीट शेड्यूल विद यू दैट बाय दिस डेट यू शुड बी डन विद दीज चैप्टर्स, बाय दिस डेट यू शुड बी डन विद दीज चैप्टर्स, वेदर यू आर गोइंग एज पर योर ओन कन्वीनियंस और यू आर गोइंग एज पर द क्लास. दिस इज अ शेड्यूल दैट यू हैव टू ओबे. अब इस शेड्यूल में मैंने क्या चीज़ मेंशन करी, असाइनमेंट की डेडलाइंस. असाइनमेंट्स क्या हैं, जो हमने ऑटोमेटिकली चैप्टर वाइज असाइनमेंट्स आपके सॉफ्टवेयर में अपलोड करी हुई है. तो लेट्स से आप चैप्टर 8, 9, 10 कंप्लीट करते हो. ऑन कंप्लीटिंग चैप्टर 8, 9 फ्रॉम वीडियोज और फ्रॉम द लाइव क्लासेज, आफ्टर गोइंग थ्रू चैप्टर वाइज समरी लिस्ट, you feel that I am done with this particular chapter. So the next step that you have to do is you have to complete its assignment. बस आपको ये मेक श्योर करना है कि आप असाइनमेंट की डेडलाइन से पहले अपनी कंप्लीट कर रहे हो, बिकॉज दिस इज हाउ वी हैव बिल्ट अप द स्ट्रक्चर कि अगर आपका इस दिन तक ये वाली असाइनमेंट कंप्लीट हो जानी चाहिए. और असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए आपको क्या कंप्लीट करना होगा, समरी लिस्ट. समरी लिस्ट कंप्लीट करने के लिए आपको क्या कंप्लीट करना होगा, वीडियोस प्लस लाइव क्लासेस. ठीक है, अब आपने असाइनमेंट्स कंप्लीट करी, आप ऑटोमेटिकली जो डेडलाइन की डेट होगी उस दिन आपके पास ऑटोमेटिकली उसका सोल्यूशन अपलोड हो जाएगा. नेक्स्ट डेट जो आपको अवे करनी है इज द यूटीज डेट. लेट्स से 15th अक्टूबर डेट अपडेटेड है कि चैप्टर 8 to 9, 10 का यूटी होगा 15th अक्टूबर को. तो 15th अक्टूबर को उसमें ऑटोमेटिकली यूटी अपलोड हो जाएगा. आपको ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे कि इतने घंटे का यूटी है, आपको इस फॉर्मेट में अटेम्प्ट करना है. यू विल अटेम्प्ट इट एंड यू विल सबमिट टू मी फॉर चेकिंग.
Now once you submit to me for checking, in the time span of 5 to 7 days you will receive the written feedback from my side on your submitted UT plus the marks as well. So ये जो feedback आपको मिलेगा, this is very important in this CP1 exam, because यही आपको चाहिए कि मेरे अगर मैंने 5 नंबर में 5 पॉइंट्स लिखे हैं तो मैंने कौन से पॉइंट्स ठीक हैं, कौन से पॉइंट्स गलत हैं, बेसिकली मेरे पॉइंट्स में क्या इश्यूज हैं, क्या वीकनेस एरियाज हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर्स में जो मुझे फोकस करने की ज़रूरत है. सो यू विल डेफिनेटली हैव टू वेट फॉर योर फीडबैक. अब फीडबैक विल बी ऑन individual basis. Now when I say feedback is on individual basis, that means you will be provided with a mail of the feedback, and the feedback will not be discussed in a group. The overall performance of the group will be discussed in the class, but your individual feedback will be kept with you only. And अब या तो आपका फीडबैक होगा दैट यू हैव अटेम्प्टेड योर असाइनमेंट और यूटी इन द प्रॉपर मैनर एंड यू आर अप टू द मार्क, या फिर आपका फीडबैक होगा बेकार कि आपने नहीं सही किया, इस एरियाज में आपने बिल्कुल भी अच्छे पॉइंट्स नहीं लिखे, आपके पॉइंट्स में स्पेसिफिक नेचर ज़्यादा है, जनरल नेचर कम है, या आप इस चीज़ में गलती कर रहे हो. कुछ चीज़ें यहाँ भी कुछ रूल्स है, सर्टन वे ऑफ अटेम्प्टिंग द एग्जाम दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन फ्यू मिनट्स. तो अगर मेरा फीडबैक रहता है प्रॉपर तो ऑटोमेटिकली आपको that will be reflected in your marks, so that will be reflected in the feedback that you will be receiving. But if the feedback is bad, I may request for one-to-one session as well with you. So that means you have left everything on us. अब आपको रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं अगर आपका फीडबैक बेकार आया है कि मुझे किस किस एरिया में फोकस करना है. इफ द फीडबैक इज बैड दैट मीन्स ऑटोमेटिकली आपको 1-to-1 सेशन का शेड्यूल आ जाएगा जिसमें आपका फीडबैक डिटेल में डिस्कस होगा, जिसमें आई विल बी डिस्कसिंग विद यू कि व्हाट सर्टेन एरियाज और व्हाट सर्टेन थिंग्स दैट यू नीड टू टेक इनटू कंसिडरेशन व्हाइल यू आर डूइंग दीज चैप्टर्स. सो फीडबैक हमेशा हम लोग चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे. सेम थिंग गोज फॉर द मॉक एज वेल. जो मॉक की डेट होगी आपने उस डेट पर मॉक अटेम्प्ट किया, मॉक का फीडबैक बहुत जल्दी मिलेगा बिकॉज हम लोग मॉक इस तरीके से रखते हैं दैट यू हैव सफिशिएंट टाइम एटलीस्ट फॉर इम्प्रूवमेंट एज वेल. तो यूटीज का आपको 5 to 7 डेज में मिल जाएगा, लेकिन मॉक का फीडबैक समटाइम्स विल बी विद इन अ डे ओनली, बिकॉज जब आप लोग मॉक अटेम्प्ट कर लेते हो तो यू बिकम वेरी क्यूरियस दैट आई वांट टू नो कि हाँ मेरा ओवरऑल एग्जाम कैसा गया है, वेदर आई एम पास्ड और फेल्ड. सो यू गेट दी ग्रेड्स एज वेल दैट वेदर यू आर पास्ड और फेल्ड. सो मॉक का फीडबैक विल बी विद इन अ पर्टिकुलर डे ओनली. अब आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा लेट्स से विद इन अ वीक एग्जाम है और मैंने अगर आज मॉक दिया है तो क्योंकि आप लोग बोलते हो कि 5-7 डेज में फीडबैक आएगा तो क्या मेरे को एग्जाम से पहले फीडबैक मिल जाएगा. आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है. मॉक्स के टाइम पर स्पेशली हम लोग मॉक इस तरीके से कंडक्ट करते हैं दैट मॉक फीडबैक हैज टू बी प्रोवाइडेड विद इन अ डे और टू ओनली, बिकॉज स्टूडेंट्स डू नॉट वेट आफ्टर गिविंग मॉक दैट दे बिकम मोर क्यूरियस टू नो द रिजल्ट्स. सो यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल अबाउट ऑल दीज थिंग्स. सो अब आपको कुछ आइडिया हुआ होगा कि हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे. ठीक है. सो इन दिस वे वी विल बी प्रोसीडिंग विद द कोर्स. Now there are certain rules or certain things that I will be continuously discussing in all my classes, but I just want to highlight few of the things today in today's classes. पहली चीज, focus on the wording of the question. अब आपको ये नहीं पता चलेगा कि what exactly do I mean by wording of the question. वो आपको ये सब चीज़ें तभी समझ में आएंगी when we are discussing too many questions. जब मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगी और जब मैं आपको उसका आंसर बताऊंगी तब आपको पता चलेगा अच्छा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बेसिकली मुझे किस चीज़ पर फोकस करना है. तो टुडे इज द इंट्रो क्लास, दैट्स व्हाई जस्ट build this thing in your mind till the time your exam is there, that I have to completely focus on the wording of the question. Don't be in a hurry to submit the answer, whether it is at the time of UT or mock or at the time of live discussion. Make sure that you are reading the question very well. So next thing is read the question very well. Third thing, you cannot expect कि मेरे को बुक वर्क आने वाला है. बिल्कुल भी आप एक्सपेक्टेशंस छोड़ दो.
बिकॉज द थिंग आई एम स्पेशली हाईलाइटिंग दिस थिंग इज कि पास पेपर्स अगर आप लोग रेफर करोगे बिफोर कोविड यू हैड लॉट ऑफ बुक वर्क एट दैट टाइम because the paper was designed in that manner only, but now you cannot expect book work, especially if you are giving exams from IFOI. So don't have that expectation in your mind that I have to learn these things. अगर आप IFOI से प्लान कर रहे हो तो you don't have to remember any of the thing, you have that open book with you, so आप learning skip कर सकते हो. हमें किस पे फोकस करना है? एप्लीकेशन पे. एप्लीकेशन पे हमें कैसे फोकस करना है? बाय प्रैक्टिसिंग डिफरेंट स्टाइल ऑफ क्वेश्चंस. अगर मैं आपको एक या दो तरीके के क्वेश्चन से करवाती रहूंगी तो आप वो एप्लीकेशन नॉलेज नहीं डेवलप कर पाओगे. तो मेरा टारगेट यही रहेगा दैट वी हैव टू प्रैक्टिस लॉट ऑफ क्वेश्चंस सो दैट वी आर वेरी वेल इक्विप्ड विद एप्लीकेशन प्लस हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स. कभी कभी ऐसा होगा पूरी एक क्लास के अंदर हम लोग सिर्फ 2 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, लेकिन वो 2 क्वेश्चंस हम लोग इस तरीके से डिस्कस करेंगे दैट एटलीस्ट द सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन कम्स इन एग्जाम यू आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दोस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. तो कवरेज वाइडर रखना अपनी. Do not restrict yourself only to one particular section, only to one particular idea throughout your entire course or throughout the time that you are taking the videos or live classes. Just make sure that your coverage of the subject is wider, your coverage of the ideas is wider. We have to go for a wider ideas और वो धीरे धीरे ही possible होंगे. ठीक है. Next thing is मार्क्स के बेसिस पे हाउ टू डिसाइड द नंबर ऑफ पॉइंट्स टू राइट. इफ द क्वेश्चन इज ऑफ 5 मार्क्स आई एक्सपेक्ट 10 वैलिड पॉइंट्स फ्रॉम योर साइड. नो पैराग्राफ एट ऑल, नो पैराग्राफ्स एक्सेप्टेड. बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है कि एट टाइम स्टैंडर्ड सोल्यूशन में पैराग्राफ दिया है तो आप क्यों बोलते हो कि पैराग्राफ एक्सेप्टेड नहीं है. आपको स्टैंडर्ड सोल्यूशन में जितने मर्जी पैराग्राफ्स दियो बट यू हैव टू गिव योर आंसर इन 10 वैलिड पॉइंट्स. सपोजिंगली द क्वेश्चन इज ऑफ 5 मार्क्स. इफ द क्वेश्चन इज ऑफ 10 मार्क्स 20 वैलिड पॉइंट्स. अब यू वुड आस्क मी कि 20 पॉइंट्स बनेंगे कैसे, 10 नंबर में हम लोग कहाँ से 20 पॉइंट्स बनाएं. अब यही आपने सीखना है. यही मैं सब कुछ अगर आप पहली क्लास में बता दूंगी तो ऑब्वियसली ये जो 5-6 मंथ्स का टाइम स्पेन है आप इसमें क्या सीखोगे, ये चीजें हम लोग सीखेंगे. समटाइम्स 20 मार्क्स का क्वेश्चन भी दिया होगा और उसमें हमें 40 वैलिड पॉइंट्स बनाने होंगे. मैं बार बार एक चीज पे फोकस कर रही हूँ, वैलिड, बिकॉज 40 पॉइंट्स आप बना सकते हो. आप मुझे डेफिनेशंस दे दो, आप मुझे इररिलेवेंट चीजें दे दो, आप 40 पॉइंट्स बना दोगे, लेकिन वो वैलिड के अंदर काउंट नहीं होंगे. तो आपको जो समझना है वो ये समझना है कि गिवन द क्वेश्चन स्टार्टिंग फ्रॉम द डे ऑफ योर एनरोलमेंट till the time of your exam, how do I have to build the knowledge that I am reaching to this level which is required for exam. And just don't stick to core reading. Now many students ask me this question, ma'am I am done with the videos, I am done with core reading, लेकिन past papers हम ना सिर्फ 1 महीने पहले पेपर से करेंगे तो do you think it is sufficient? Not at all. It will not work for CP1. ये चीज ध्यान रखना. CP1 क्रैक करने के लिए कंसेप्चुअल नॉलेज प्लस पास पेपर्स शुड गो हैंड इन हैंड. लेकिन कंसेप्चुअल नॉलेज और पास पेपर्स में आपको इस लेवल पर आना है, ये आपको ध्यान रखना है. और वो लेवल कैसे अचीव होगा, जब आप क्या कर रहे हो, यू आर बेसिकली फोकसिंग ऑन ऑल दीज स्टेप्स. Neither missing on videos nor missing on live class, going through the core reading very well, going through chapter wise summary list of both the societies, completing your assignments well before the deadline, attempting your UT, waiting for the feedback. If your feedback is not good, working on the areas which I have highlighted and then going for the mock. तो ये एक दिन में पॉसिबल नहीं होगा. इट्स बेसिकली
ये पूरे 5-6 महीने की आपकी मेहनत है which is required. Now some students do start late as well, like we do get students after the result that do you think it is feasible to crack the exam. So मेरी ये recommendation है कि अगर आपके पास sufficient time है, it's up to you how you are basically managing your day. मुझे आपसे बेसिकली 1 से 1.5 घंटा चाहिए. लाइक अगर आप अक्टूबर में प्लान कर रहे हो फॉर अप्रैल, तो मुझे आपसे रेगुलरली 1 से 1.5 घंटा चाहिए, चाहे आप उसमें वीडियो देख रहे हो, चाहे आप सैटरडे संडे को मुझे एक्स्ट्रा चाहिए, क्योंकि सैटरडे संडे को आप लाइव क्लास भी अटेंड करोगे. लाइव क्लास के अलावा आपका मुझे 2 घंटे चाहिए. बाकी मंडे टू फ्राइडे में मुझे सिर्फ आपसे 1-1.5 घंटा चाहिए, जिसमें किसी दिन आपने वीडियो देख ली, किसी दिन आपने समरी लिस्ट कर ली, किसी दिन आपने असाइनमेंट कर ली टिल योर मार्च और अप्रैल अटेम्प्ट. लेकिन अगर आप लेट्स से आप दिसंबर के बाद प्लान करते हो तो डेफिनेटली यू कैन प्लान, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन उसमें आपका डे का एफर्ट काफ़ी बढ़ जाएगा. बट वी हैव मेनी स्टूडेंट्स हु डू लाइक दिस कि, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर आपको प्लान करना ही है तो यू शुड प्लान अर्ली बिकॉज यू गेट सफिशिएंट टाइम टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट. लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो रिजल्ट के बाद प्लान करते हैं, तो अगर आप रिजल्ट के बाद भी प्लान करते हो तो बस ये डिफरेंस आएगा कि योर डेली एफर्ट वुड इंक्रीज. तो इफ़ यू थिंक यू कैन मैनेज दैट, गो हेड with that as well. ठीक है, तो ये तो हो गया कि पैटर्न एंड द नॉलेज विच इज़ रिक्वायर्ड रीचिंग टू द लेवल ऑफ एग्जाम, व्हाट बेसिकली थिंग्स यू हैव टू फोकस, व्हाट यू हैव टू स्किप. अब और हम कुछ और जर्नल रूल्स डिस्कस कर लेते हैं. एक रूल है जर्नल वर्सेस स्पेसिफिक का बैलेंस इन अ क्वेश्चन. कितने मुझे जर्नल पॉइंट्स लिखने हैं, कितने मुझे स्पेसिफिक पॉइंट्स लिखने हैं. अब स्पेसिफिक जर्नल आप तभी समझोगे व्हेन वी आर एग्जैक्टली डूइंग अ क्वेश्चन. देयर आई विल बी कंटिन्यूसली डिक्टेटिंग. जब मैं हम लोग लेट्स से डिस्कशन कर रहे हैं, या जब आप वीडियो में भी देखोगे कि किसी क्वेश्चन में मैं बोल रही हूँ डोंट बी टू स्पेसिफिक, किसी में मैं बोल रही हूँ डोंट बी टू जर्नल, किसी में मैं बोल रही हूँ कि आपने जर्नल पॉइंट्स बहुत ज़्यादा बोल दिए, किसी में बोल रही हूँ मैं स्पेसिफिक ही हो रही हूँ, आप बिल्कुल जर्नल नहीं हो रहे. तो यू विल कंटिन्यूसली सीइंग मी सेइंग दिस 2 वर्ड्स. तो जर्नल का मतलब होता है, लेट्स से क्वेश्चन में आया है मेंशन द रिस्क फैक्टर्स फॉर ट्रैवल इंश्योरेंस. तो आप क्या क्या फैक्टर्स मेंशन करोगे कि लेट्स से एक कंपनी है, उसको ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी वो बना रही है, तो क्या क्या फैक्टर्स के बेसिस पे वो अपना प्रीमियम डिसाइड करेगी. तो ट्रैवल इंश्योरेंस अगर हम लोग कवर ले रहे हैं तो हम क्या चाहेंगे कि उसमें लगेज कवरिंग भी हो. ठीक है, लगेज अगर मेरा लॉस्ट हो जाए, डैमेज हो जाए, तो उसकी कवरेज भी हो. मेरी फ्लाइट डिलेज और कैंसलेशंस कवर हो. लॉस ऑफ पर्सन, मे बी डेथ ऑफ अ पर्सन ड्यूरिंग ट्रैवलिंग, वो भी कवर हो. ठीक है, इलनेस, यू गॉट इल ड्यूरिंग ट्रैवलिंग एंड यू रिक्वायर कंपनसेशन फॉर दैट. आजकल क्या है कि कुछ साइट सीइंग वाले आपके इवेंट्स बंद हैं बिकॉज ऑफ कोविड. सो इफ दोज इवेंट्स आर कैंसल्ड और दे आर क्लोज्ड, you require compensation for those as well. And sometimes we say कि if there is any natural disaster which occurs, we require coverage for that as well. तो अगर मैं specific points की बात करूँ इस केस में, these can be the specific points. जनरल पॉइंट की बात करूँ तो ये मेरा और है जनरल पॉइंट. नेचुरल डिजास्टर वो इस सिर्फ ट्रैवल इंश्योरेंस के लिए नहीं है, वो शायद हर टाइप के इंश्योरेंस में आपको नेचुरल डिजास्टर की कवरेज चाहिए. तो इसी तरीके से आपको एक बैलेंस बनाना होता है कि मुझे किस क्वेश्चन में कितने जनरल पॉइंट्स लिखने हैं, कितने स्पेसिफिक पॉइंट्स लिखने हैं. आप यू कैन नॉट बी टू जनरल, यू कैन नॉट बी टू स्पेसिफिक, बट समटाइम्स लाइक सपोजिंगली स्पेशली इन पेपर टू तो हमें कंप्लीटली स्पेसिफिक होना है, उसमें मेरे पास जनरल का स्कोप नहीं है. इसलिए पेपर 2 हम लोग क्यों कहते हैं कि स्लाइटली डिफिकल्ट है, बिकॉज इट हैज़ टू बी कंप्लीटली टेक्निकल एंड कंप्लीटली स्पेसिफिक. तो you will be learning about how to maintain balance between journal and specific first thing. Then बहुत स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि चलो ठीक है पास पेपर्स पेपर 1 के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा है पढ़ने के लिए, लेकिन पेपर 2 का हम लोग क्या करें, कहाँ से इतनी केस स्टडीज़ लाएं. तो पेपर 2 की जो प्रैक्टिस है, यू जस्ट हैव टू लीव सोलली ऑन मी.
the way, I mean, after going through the conceptual discussion class or maybe after completing a good percentage, जब मेरा 60-70% कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, let's say 7 to 8 classes will be focusing exclusively on case study. आप ये मान के चलो, अगर आपकी केस स्टडी पे आप बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहे तो आपका पेपर नहीं निकल सकता. तो इसीलिए फ्रॉम दिस अटेम्प्ट ऑनवर्ड्स व्हाट आई हैव स्टार्टेड डूइंग इज आई एम कीपिंग सेपरेट क्लासेस, let's say 7 to 8 classes exclusively focusing on case study discussion covering different aspects. I will try कि मैं उसके अंदर हेल्थ की केस स्टडी भी लाऊं, जर्नल की केस स्टडी भी, लाइफ की केस स्टडी भी, पेंशंस की, ये तो बहुत नॉर्मल है. एंड इसके अलावा हम कोई भी करेंट इवेंट विच इज हैपनिंग इन द इकोनॉमी हम उसको मिस नहीं कर सकते. लाइक अभी लास्ट अटेम्प्ट में जो इंडिया का पेपर हुआ उसमें दे हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट दे कैन फ्रॉम द कोविड परस्पेक्टिव, क्योंकि वो एक हॉट टॉपिक है जो चल रहा है, तो यू कैन एक्सपेक्ट द केस स्टडी ऑन दैट. सो वी हैव टू एक्सक्लूसिवली फोकस ऑन केस स्टडी. और केस स्टडी डिस्कशन क्लासेस में आप ये मान के चलो कि एक क्लास में सिर्फ एक केस स्टडी डिस्कस हो सकती है, लेकिन जब वो केस स्टडी आप एक्चुअल में लाइव डिस्कस करोगे तो यू विल बी गेनिंग अ लॉट. सो आप चाहे जो मर्जी क्लास मिस करो, एटलीस्ट इन केस स्टडीज़ की क्लास को या जो मर्जी वीडियो स्किप करो आप, बिकॉज व्हेन यू आर नियर टू एग्जाम यू स्टार्ट स्किपिंग द वीडियोस, बट मेक श्योर दैट एटलीस्ट यू आर गोइंग थ्रू द वीडियोस और अटेंडिंग द लाइव क्लास ऑफ स्पेशली ऑफ दीज केस स्टडी थिंग्स. केस स्टडी कभी भी चैप्टर वाइज नहीं आएगी, केस स्टडी विल बी टॉपिक वाइज. तो जो आपने 40 38 39 चैप्टर्स में पढ़ा होगा दे विल बी टेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडी. ठीक है, नेक्स्ट है कुछ रूल्स हैं क्वेश्चन से रिलेटेड. पहला क्या रूल है, इफ द क्वेश्चन इज ऑफ 5 मार्क्स, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट टू बी ऑन अ सेफ साइड आई विल एक्सपेक्ट 10 पॉइंट्स फ्रॉम योर साइड. अब वी विल बी लर्निंग ग्रेजुअली हाउ टू रीच टू दैट लेवल. नेक्स्ट थिंग मैंने आपको बोला है ऊपर कि मेक श्योर दैट यू आर गोइंग थ्रू द वर्डिंग ऑफ ईच क्वेश्चन इन डिटेल. क्वेश्चन की वर्डिंग अगर कहती है डिफाइन, दैट मीन्स मुझे डिस्कस नहीं करना, मुझे सिर्फ लिस्ट करना. क्वेश्चन की वर्डिंग कहती है लिस्ट, तो ओनली पॉइंटर्स, नो नीड फॉर एक्सप्लेनेशन. क्वेश्चन की वर्डिंग कहती है हाईलाइट, तो पॉइंटर से थोड़ा सा इंक्रीज कर देना, बट डेफिनेटली डिटेल के अंदर डिस्कस नहीं होगा. क्वेश्चन की वर्डिंग कहती है डिस्कस, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड. क्वेश्चन की वर्डिंग कहती है सेट आउट, सिमिलर टू लिस्टिंग ओनली. सो बस क्वेश्चन की वर्डिंग कहती है एक्सप्लेन, तो अगेन एक्सप्लेन इन डिटेल. इन चीज़ों को आप ध्यान में रखना इन दी अपकमिंग क्लासेस, बिकॉज आई विल बी फोकसिंग अ लॉट ऑन दीज वर्डिंग्स. अब मेरे को डाउट आता है बच्चों का, दोनों पेपर 100 मार्क्स के हैं, डू यू थिंक दैट वी वुड बी एबल टू मेक 200 पॉइंट्स इन द गिवन टाइम फ्रेम? Yes, you can attempt both the papers fully, provided you are good in typing. So your typing speed is definitely matters a lot. Typing plus thinking, these two things have to go all together. तो आपको टाइप भी करना है प्लस सोचना भी है. अब वो सोचने के लिए ही हम 4-5 महीनों की मेहनत करेंगे, ताकि इसमें एटलीस्ट टाइम ना लगे. अगर इसमें टाइम लग भी रहा है तो ये ठीक है, हम लोग कवर कर लेंगे, लेकिन इसमें टाइम ना लगे. मैं एक पॉइंट टाइप कर रही हूँ तो दूसरा पॉइंट मेरे दिमाग में ऑलरेडी चल रहा है. ठीक है. अब कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ना हम लोग समझते नहीं है द वे इन विच दे आर आस्किंग क्वेश्चंस. हम लोग हर चीज़ के लिए बस डिटेल एक्सप्लेनेशन देते रहते हैं. अगर 6 मार्क्स के क्वेश्चन में लिस्ट दिखा हुआ है, ठीक है, तो आपको लगता नहीं यार 6 नंबर का है, मुझे इसमें भी अच्छी खासी डिटेल्स देनी चाहिए. कभी कभी क्या होगा 10 नंबर में भी लिस्ट लिखा होगा और आप फिर भी डिटेल्स दे रहे हो, तो दैट मीन्स यू आर नॉट फोकसिंग ऑन time management at all and you won't be able to attempt for full marks. फुल मार्क्स का आप तभी अटेम्प्ट कर सकते हो जब आप वर्डिंग्स पे काफ़ी फोकस कर रहे हो. अगर क्वेश्चन में डिस्कस या एक्सप्लेन लिखा है एंड लेट्स से इट इज ऑफ 8 मार्क्स,
what I expect from you is different subheadings. सब हेडिंग्स बहुत ज़रूरी है, बिकॉज सब हेडिंग से हमारे जो पॉइंट्स की पैटर्न आता है, जो पॉइंट्स का सीक्वेंस आता है, वो करेक्ट सीक्वेंस होता है. जब हम रैंडमली डिफरेंट पॉइंट्स लिख रहे होते हैं विदाउट एनी सब हेडिंग, क्या होता है, पहला पॉइंट कैन बी रिस्क, और उसकी मिटिगेशन लिखने के बजाय मैं कुछ और ही लिखना स्टार्ट कर देती हूँ. फिर 7th पॉइंट पे जब मैं आती हूँ तब मुझे लगता है यार पहले से रिलेटेड कुछ और मैं एक्सटेंड कर सकती हूँ, लेकिन तब आपका जो पैटर्न आता है, वो सीक्वेंस वो नहीं आता जो एग्जाम का स्टैंडर्ड एक्सपेक्ट करता है. तो जब भी क्वेश्चन की वेटेज 7 या 8 मार्क्स से ऊपर है और वो आपको डिस्कस या एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है, मेक श्योर यू आर मेकिंग सब हेडिंग्स. इट्स नॉट लाइक दैट योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड, इट्स दैट द सीक्वेंस इज डेफिनेटली ऑफ द एग्जाम स्टैंडर्ड. ठीक है, तो इस चीज पर हमें ध्यान रखना है. अब मैंने आपको बहुत सारे चीजें हाईलाइट, मतलब पॉइंटर्स पॉइंट आउट करे हैं आज की क्लास में. तो ये पॉइंटर्स हाईलाइट करने का सिर्फ यही मतलब है दैट फ्रॉम द सेकेंड क्लास ऑनवर्ड्स just make sure that you are focusing on all these things. मेरा फोकस रहेगा conceptual discussion first and then moving to past papers discussion. And what I expect from you is that, I mean, you do not have to hesitate in anything for asking me. I mean, if whether it is any conceptual doubt or whether it is a past paper doubt, just make sure that you are answering, I mean, you are just questioning the thing that is something that is making you trouble. Just make sure you are questioning that thing. Don't take things for granted. You have complete right to question. आप इसीलिए study help ले रहे हो क्योंकि you feel that there are certain things on which I need improvement, so I can go for coaching and I can improve on that. लेकिन अगर आप पूछोगे नहीं तो how you can improve on that? So, अगर कोई भी कंसेप्चुअल डाउट है, कुछ भी आपको लगता है दैट, अगर लेट्स सपोज हमने एक क्लास में कोई पास्ट पेपर डिस्कस किया, आपने क्लास के बाद वो पास्ट पेपर गो थ्रू किया एंड यू आर समहाउ नॉट कंफर्टेबल विद द पॉइंट्स, यू वांट डिस्कशन ऑन दैट, डू नॉट हेसिटेट फॉर दैट. डोंट, आई मीन, एंड स्पेशली फॉर यूटीज एंड मॉक्स या फिर असाइनमेंट्स, जस्ट मेक श्योर दैट यू आर सबमिटिंग, बिकॉज हम लोग सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे फीडबैक डिस्कस कर रहे हैं, ग्रुप लेवल पे आपका कोई भी फीडबैक डिस्कस नहीं होगा. सो यू डोंट हैव टू वरी कि वेदर माई UT went well or not. It's only me who is checking, and मुझसे अगर आपकी परफॉर्मेंस छुपी रहेगी तो how you can reach to the level of exam standard. तो आपको बस ये देखना है कि आपने एनरोल करवाया है एग्जाम तक पहुंचने के लिए, एग्जाम में पास होने के लिए. तो जो भी आपको फैसिलिटीज दी हैं हमने, जस्ट ट्राई टू मेक मैक्सिमम यूज ऑफ दैट. Sometimes you will feel you are going as per your own pace, like supposing if you are not attending the live classes and you are just focusing on videos only. So sometimes you will feel that I just want to have a quick discussion with faculty where I can discuss that this is how I am proceeding and this is how you are proceeding, so am I correct or not, or what all things that we can focus upon. So you can just ping on the institute number for a 1-to-1 session, and seeing my schedule and your availability, we will be keeping one session where we can quickly discuss all the things. ठीक है. सो फॉर एनीथिंग, एनी डिस्कशन सेशन रिक्वायर्ड, एनी डाउट सेशन रिक्वायर्ड, और अ पर्टिकुलर डाउट विच यू नीड टू एड्रेस, you do not have to wait for a doubt class to occur. You can simply mail on our mail ID theacademicjunction@gmail.com. So any doubt, any request for any session, any small doubt which is troubling you can be mailed to this ID and you will receive the reply from our side. ठीक है. So that was what I wanted to highlight in today's class. So we will be starting with chapter 8 to 10 in the next class. So just make sure that you are going through the video well before the class. Okay, so that's it from my side for the day. Thank you.